Doctors and parents, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, we're gonna discuss about the NEET PD 2023 All India Round 3 status. The Supreme Court court case also, that whether this round will be cancelled or not, the last date of reporting, and the multiple of the states rules and regulation, that exactly what is happening. And we also gonna discuss about the shift in your All India Round 3. Multiple of the things has been said for All India Round 3, exactly what happened. I know we are uploading a video at very late, so we are really sorry for that, but we have, as we have already promised, do join our Telegram channel Admission Media as well as our Instagram platform, as well as for our WhatsApp community group, because whatever the latest update, the information we are continuously posting there, we are making the video on the All India Round 3 updates regarding that, as well as we also gonna discuss about the history round rules and regulation, that who will be eligible, who not be eligible. So for all those details, be on watch this video till then. So let's begin. If I talk about the All India Round 3 result, the result has already been published. The last date of reporting for your All India is 6th of October. That is, जिनको भी सीटें मिली हुई हैं, last day to go to the college and join the seat is 6th of October. Those candidates who has already got the allotment in your All India Round 3, मतलब कि अगर आपको All India Round 3 में allotment मिल चुका है, whether you join the seat or don't join the seat, in the both case your security amount will be forfeited. The security amount, if you are joining the seat, then your security amount will be refunded, but it won't be deducted from your fees part. मतलब कि अभी आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी जितनी भी फीस है वो आप पे करोगे. आफ्टर 3 to 4 मंथ जब आपका रिफंड पॉलिसी किया जाएगा, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो भी आपने पे की है 2 लाख और 25,000 फॉर जनरल आई एम सेइंग, ये आपका रिफंड हो जाएगा इन द सेम अकाउंट from where you have made the payment. But those candidates who are not gonna join the seat but allotment is there, whether there is any branch, your security amount will be forfeited, आपका refund नहीं किया जाएगा. At the same time, there is no upgradation from mop-up round to the stray round. Multiple candidates are getting confused that कि round 3 से round 4, यानी कि round 3 that is mop-up round से आपको stray round में upgradation का दिया जाएगा. There is nothing gonna happen like that, because since the beginning MCC has already cleared the rules and regulation regarding that कि आपकी अपग्रेडेशन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तक रहेगी. राउंड 3 में जो भी सीट मिलेगी दैट इज द फाइनल सीट. यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप उसे ज्वाइन करो और लीव द सीट एंड गेट आउट ऑफ द स्ट्रे राउंड ऑल्सो. मतलब कि ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो ऑल इंडिया राउंड 4 या अगर 5th राउंड भी होता है या स्पेशल स्ट्रे राउंड वैकेंसी भी की जाती है, इवन इन दैट केस आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहने वाली है. In the meantime, multiple states has changed their rule and you are eligible in their states also. But after the joining of your All India Round 3, a final list and the final list of candidates will be shared between the multiple of the states. And जितने भी candidates ने already join कर रखा है, maximum chances हैं कि ये सारे states इनको eliminate कर देंगे. And this is what exactly happened in the NEET UG also. तो maximum chances यही हैं कि आपकी पीजी में भी यही किया जाएगा कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो ऑल इंडिया राउंड सीट को, तो दिस इज द रीजन मल्टीपल स्टेट्स आर ऑल्सो डिलेइंग देयर रिजल्ट और देयर काउंसलिंग बाय 1 डे. मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम चांसेस इस चीज़ की हो सकती है कि जैसे ही आपकी लिस्ट ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स एमसीसी पब्लिश करेगी आफ्टर द 5 PM ऑफ योर ऑल इंडिया, क्योंकि 6th of October टिल 5 PM यू कैन ज्वाइन योर सीट. इसके बाद जो लिस्ट आएगी, दीज आर दोज कैंडिडेट्स जो अपनी सीट्स को लीव नहीं कर सकते हैं, or they have to compromise or they have to proceed with the final seat which has been joined by 6th of October. इसके बाद इनके स्टेट्स इनको एलिमिनेट कर देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद ही उनके रिजल्ट आएंगे, जो चांसेस दिख रहे हैं. क्या राउंड कैंसिल होगा? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट केस हैज ऑलरेडी बीन एक्सपेक्टेड, द पिटिशन और द PIL हैज बीन एक्सपेक्टेड, बट फाइनल जजमेंट इज नॉट हियर. द हियरिंग इज ऑन द 6th of October. हो सकता है, दोनों चांसेस हो सकते हैं. मल्टीपल ऑफ द कैंडिडेट्स हैज आस्क्ड अस कि सर हम रिपोर्ट करें या नहीं करें, या अगर हम स्टेट्स की सीट को छोड़ देते हैं और राउंड कैंसिल हो जाएगा तो अभी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी. व्हाट अबाउट द प्रीवियस सीट? इन दिस केस लेट मी क्लियर यू अ वेरी क्लियर थिंग एंड द वेरी सिंपल थिंग. ड्यू टू एनी रीजन, इफ योर ऑल इंडिया राउंड 3 रिजल्ट गेट्स कैंसिल्ड ऑन द 6th of October as per the hearing and as per the schedule of Supreme Court, if it will happen, then the seat allotted to you in your All India will be cancelled out. एट द सेम टाइम आपके पास प्रीवियस जितनी भी सीटें थी या जिस भी स्टेट में थी, इवन इफ इट वाज इन योर ऑल इंडिया राउंड 2 आपने ज्वाइन प्लस अपग्रेड किया था, तो प्रीवियस सीट किसी भी स्टेट में अगर आपने रिजाइनिंग किया हुआ है
तो वो पर्टिकुलर सीट ऑटोमेटिकली आपके पास रिवर्स आ जाएगी, मतलब कि ऑटोमेटिकली फिर से आपके पास आ जाएगी विदाउट डूइंग एनीथिंग। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा देन अगेन यू कैन टेक अ डिसीजन कि आपको ये सीट ज्वाइन करनी है या जो नई सीट अलॉट होगी आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में वो सीट ज्वाइन करनी है, या आपको जो प्रीवियस सीट मिली है उसके साथ कंटिन्यू करना है। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज मल्टीपल ऑफ द कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द 6th of October डेट जो भी हेयरिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कैंसिल नहीं हुआ उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज अ वेरी रिस्कफुल। 5 बजे तक का ही टाइम दिया जाएगा, मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि एक दिन का एक्सटेंशन मिले इफ दिस विल हैपन। अगर कोर्ट केस में चीज़ें नहीं कैंसिल होती हैं एक दिन का एक्सपेंशन मिल सकता है, बट डोंट वेट फॉर डेट। आपको जो भी सीट मिली है अगर आपको ज्वाइन करना है गो एंड ज्वाइन द सीट। राउंड कैंसिल भी होता है तब भी आपका कोई लॉस नहीं होगा, यू वोंट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल। बट अगर कैंसिल नहीं हुआ देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर आपको ज्वाइन करना है यू हैव टाइम टिल 6th of October, डू ज्वाइन द सीट। अगर लीव करना है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर इन अ केस अगर आगे नेक्स्ट हियरिंग में अगर ये कुछ भी होगा वी आर नॉट गिविंग एनी कमेंट ऑन दैट कि कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट सुप्रीम कोर्ट डज, बिकॉज थिंग्स आर ऑलरेडी इन द मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी जजमेंट आएगा इट विल बी फेयर एंड इनफ, लेट्स सी व्हाट हैपन। बट the major portion or the major part or the main point government which has played the 0 percentile, यहाँ पे a history has been created till now 3000 4000 500 600 at least 1000 plus seats get vested every year even after the stray round or the special stray vacancy round। last year आपकी special stray vacancy round भी हुई थी, even after that 3300 seats were vested in your all India। this time the government which we wanted to do or which they were planning to do, I am congratulating them, they have did the successfully it। let me tell you how। 0 percentile का उद्देश्य जैसा कि आपके होम मिनिस्टर जैसा कि आपके हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी बोला हुआ है, श्री मनसुख मांडविया जी ने भी बोला हुआ है, इट सिंपली मीन्स कि काउंसलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक सारी सीटें वैकेंट आउट ना हो जाएं या जब तक सारी सीटें अलॉटेड ना हो जाएं। इफ आई टॉक अबाउट इन योर ऑल इंडिया राउंड 3 95 to 97% seats has been allotted। yes, even in your deemed government institute 50% all India की सीटें as well as deemed universities की भी सीटें 95 to 97% seats has been allotted, including your clinical, non-clinical and every seat। if you look at the allotment rate almost after the round 3 allotment, I mean before the round 2 1000 आपकी नॉन क्लिनिकल सीटें वैकेंट थी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एंड 1500 के अप्रोक्सीमेटली आपकी 50% गवर्नमेंट कोटा में थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस एंड इफ यू लुक एट द अलॉटमेंट मोस्ट प्रॉबली अराउंड 100 to 250 मैक्सिमम, आई एम सेइंग 100 to 250 सीटें ही ऐसे आपको दिखेंगी, इंक्लूडिंग डिप्लोमा, एनबी डिप्लोमा, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, XYZ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, PSM, FMT, microbiology, each branch seat has been allotted। almost 95 to 97% seats has been allotted। यहाँ पे जो सीटें वैकेंट आएगी फॉर दैट इट विल बी अ स्ट्रे राउंड। वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस नहीं है ज़्यादा सीटें आएंगी, विदाउट एनी डाउट सीट्स विल बी कमिंग बट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, बिकॉज जिनको भी सीटें मिल गई हैं मैक्सिमम पीपल आर ऑलरेडी रिपोर्टिंग द सीट, सो नॉट टू वरी, कुछ सीटें जरूर आएंगी इन द स्ट्रे राउंड। दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, बिलीव मी nothing will be there, a shift will be seen but not a huge positive shift is seen because it is not expected। let's see exactly कैसे काउंसलिंग प्रोसीड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। बट जिनको भी इस राउंड में सीट मिल चुकी है दे विल बी नॉन एलिजिबल फॉर द स्ट्रे राउंड। सीटें आएंगी विदाउट एनी डाउट, सीटें आएंगी। दोज पीपल हु हैज नॉट गॉट एनी अलॉटमेंट इन योर ऑल इंडिया राउंड 3, अब डायरेक्टली राउंड 4 के लिए एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आपको सिक्योरिटी अमाउंट या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट दैट एग्जैक्टली कोर्ट केस क्या होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि विदाउट एनी डाउट जो भी कोर्ट केस क्लियर होगा 6th of October को चीज़ें हो जाएंगी। आप अभी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोसीड करो। सीट मिली है, ज्वाइन करना है तो डू ज्वाइन इट। कैंसिलेशन भी होगा तो प्रीवियस सीट आपको रिवर्स आ जाएगी। इन केस अगर ज्वाइन करने के बाद भी कैंसिलेशन होता है तो आपका जो भी अमाउंट होगा रिफंड हो जाएगा। इन फ्यूचर जो भी आपको नई सीट अलॉट होगी आप अपनी सिक्योरिटी अमाउंट या अपनी फीस के साथ वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन इन द लास्ट ईयर द सेम थिंग हैपन, सारी चीज़ें रिफंड की गई थी, सारी चीज़ें एज इट इज़ प्लान की गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई र्यूमर से बचें।
As well as if I talk about the states counseling update, multiple states has already extended their round 3 counseling by 1 day or 2 day. In the Rajasthan, the things is already happening. If I talk about the shift in your All India round 3, since the beginning, multiple people have, the multiple counselor has claimed that a big or a huge positive shift will be coming. Since the beginning, we have said only one thing: there will be a positive shift, but not a huge positive shift. If I talk about the All India round 3, a negative shift has been seen instead of positive shift. हायर क्लिनिकल ब्रांचेस में डीम्ड की अगर मैं बात करूं या नॉन क्लिनिकल या एनेस्थीसिया ईएनटी की भी मैं बात करूं, निगेटिव शिफ्ट हो देखने को मिलेगा आपको कंपेयर टू द राउंड 2 ऑफ दिस राउंड दिस ईयर इटसेल्फ. तो पॉजिटिव शिफ्ट कहीं भी नहीं देखने को मिला है. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेट और ईच एंड एवरी ब्रांच फेसिंग नॉट अ वेरी ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट. देन देर इज अ पॉजिटिव एट अ लिटिल बिट पॉजिटिव शिफ्ट, बट ऑलमोस्ट अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो जो पॉजिटिव शिफ्ट की बात की गई थी वो नहीं हुआ. सिंस द बिगिनिंग वी आर सेइंग ओनली वन थिंग कि पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसकी बात की जा रही है सिंस द बिगिनिंग वो नहीं होने वाला. इवन इफ यू लुक एट द रेडियो डर्मा मेडिसिन सारे ब्रांचेस के अगर आप कट ऑफ भी कंपेयर करोगे, यू विल कम टू नो कि एक पॉजिटिव शिफ्ट तो नहीं, निगेटिव शिफ्ट ही कंपेयर करने को आपको मिलेगा. बिकॉज इवन आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ 2500 सीट्स, नो पॉजिटिव शिफ्ट इज सीन. सो आपको समझ में आएगा कि डिमांड किस तरह से है. एट द मीन टाइम, मल्टीपल काउंसलर्स और द मल्टीपल एजेंट्स आर ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट इन देयर लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस. लाइक पैथोलॉजी में डिस्काउंट दे रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दे रहे हैं. बिलीव मी, नो डिस्काउंट विल बी अवेल्ड एट द लास्ट मोमेंट, बिकॉज डिमांड आप इससे समझ सकते हो 97% सीट्स हैज बीन अलॉटेड इन योर ऑल इंडिया. जितने भी कैंडिडेट्स को नहीं मिली है, दे विल बी टारगेटिंग फॉर द स्टेट्स काउंसलिंग. डिस्काउंट या नेगोशिएशन फीस में तब किया जाता था जब सीटें वैकेंट रह जाती थी और लेने वालों की काउंटिंग नहीं होती थी या लेने वाले कैंडिडेट्स नहीं हुआ करते थे. आज के मोमेंट पे द थिंग्स हैज बीन रिवर्स्ड. लेने वालों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि सीटें कम पड़ जा रही हैं. इफ़ यू लुक और द कंपेयर द एनी स्टेट मेरिट लिस्ट, यू विल कम टू नो दैट कहीं पे अगर 50 सीटें खाली हैं तो 4000 बच्चों ने अप्लाई किया है. 700 सीटें खाली हैं तो 6000 प्लस बच्चों ने, 6000 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है. तो यू हैव टू थिंक कि अगर आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस, रेडियो डर्मा मेडिसिन देख रहे हो तो एजेंट या काउंसलर आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. एंड द मीन टाइम मल्टीपल स्टेट्स में अप्लाई करने से भी सीटें नहीं मिल जाएंगी. यू हैव टू टेक अ स्मार्ट डिसीजन, बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स में अप्लाई करने जाओगे आप तो 2 लाख हर स्टेट में 2 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट है. 5 to 6,000 आपका फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फीस है. कुछ स्टेट्स में 5 लाख तक की भी सिक्योरिटी अमाउंट देखने को मिलेगी. सो ये अमाउंट वेस्ट करने से है हायर अ हाइब्रिड पर्सन who is counselor as well as a consultant. In the meantime, only these people can help you out to get a seat even at the higher clinical branches on the just eligibility score. Without any doubt, since the beginning we are saying only one thing: branch अगर आपको preference है तो you have to compromise with your state or college preference, or if you having a state or college preference, be ready to fluctuate with your branch. branches से आपको compromise करना पड़ेगा. Without any doubt, even if you don't have NRI document or you don't want to make NRI for fraud document, then not to worry, the seat will be given to you as per the rules and regulation and through the counseling itself. But यहाँ पे अगर आपको लगता है कि वो काउंसलिंग आप खुद से भी करके सीटें ले सकते हो, तो let me tell you, multiple other candidates are coming to us with the score of 350, 360, 370, 310, 340. They having a budget of 1.5 crore, 1.6 crore. They are looking for radio, derma, medicine. But till now the round 3 of all India has been completed and इनको सीटें नहीं मिली हैं. वहीं पे those candidates who were believed in us, who has made our payment and who were the part of our paid and premium counseling services, they got on the same score they got the seat on the budget of 1.2, 1.5 में रेडियो तक भी पॉसिबल हुआ है. बट ये डिपेंड करेगा कि आपने स्टेट्स को कैसे टारगेट किया है, अपनी काउंसलिंग कैसे प्रोसीड की है. बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट यू विल कम टू नो दैट सिंस द बिगिनिंग जितनी भी बातें हमने बोली थी या जितने भी चीज़ें हमने ऑन कैमरा आपको बताई हुई हैं, इफ़ यू गोना लुक एट दोज डिटेल्स, इफ़ यू गोना लुक एट दोज स्टैटिस्टिक्स, यू विल कम टू नो दैट सिंस द बिगिनिंग हम जितनी भी चीज़ें बोलते आ रहे हैं, एटलीस्ट फॉर योर नीट पीडी 2023 इट हैपन. वी वर द ओनली पीपल टू टेल कि ऐसा भी हो सकता है कि सबकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी. एंड डोंट बी इन शॉक एट दैट मोमेंट. प्रीवियस टू द प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये बोला था. एंड एवरी वन इज एलिजिबल. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी चीज़ जो वो करना चाहते थे, दे आर हैव विन दो थिंग कि हिस्ट्री हैज़ बिन क्रिएटेड एंड हिस्ट्री हैज़ बिन डन
that each and every seat in all India has been allotted. ये पहली बार हो रहा है, वरना हर साल एटलीस्ट 1000 प्लस नॉन क्लिनिकल सीटें नॉन अलॉटेड रह जाती थी. इन दिस सेशन इफ यू टॉक एट एनी स्टेट, एनी इंस्टीट्यूट, एनी कॉलेज, almost each branch, even non-clinical seats has been allotted at their fees only. यहाँ पे जितने भी लोग आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट नॉट गोना हैपन, बिलीव मी. अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, वेट फॉर 3 to 4 days. जैसे ही स्टेट्स के रिजल्ट आएंगे, यू विल कम टू नो कि जितने भी प्रोमिसेस आपको की गई थी, दोज वर फेक. इन द मीन टाइम, अगर अभी भी आपको सीटें नहीं मिली हैं, यू आर लुकिंग टू फॉर अ हायर क्लिनिकल ब्रांचेस एज जस्ट एलिजिबिलिटी स्कोर एट लोअर ब्रांचेस ऑप्शन एट द बजट पॉइंट, तो कहाँ पे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? इवन विदाउट NRI डॉक्यूमेंट वी कैन डू योर सीट, वी कैन अलॉट यू सीट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ योर MCC, NMC एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस. तो डॉक्यूमेंट नहीं भी बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सीटें मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ NRI में ही आप कन्वर्ट होगे तो सीटें मिलेंगी. मैनेजमेंट की भी सीटें पड़ी हुई हैं, 110% मिलेंगी. कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, दिस इज द रियल पॉइंट. एक सिर्फ काउंसलर या एक सिर्फ कंसल्टेंट आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. हाइब्रिड पर्सन और हाइब्रिड काउंसलिंग टीम कैन हेल्प यू आउट, जो काउंसलिंग तो करे साथ में कंसल्टेंट भी हो, क्योंकि चीजें कहाँ पे सेटलमेंट होंगी, कैसे सेटलमेंट होंगी. अ पीपल और अ टीम विद द एक्सपीरियंस कैन हेल्प यू आउट इन दिस एरा व्हेन एवरीवन इज एलिजिबल एंड एवरीवन हैविंग अ बजट टू गेट अ सीट. तो मल्टीपल रूमर्स भी आ रहे हैं, उन चीज़ों से बचें. कैसे काउंसलिंग करें, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज ले सकते हो. द डिटेल्स इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट admissionmedia.in. In the meantime, if you have any question, any inquiry or anything you can related to counseling, you can ping me on WhatsApp. कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मैसेज एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु हैज मैसेज अस. पूरी टीम लगी हुई है, सीटें नहीं मिली हैं, घबराने की जरूरत नहीं है. या तो बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, या इंक्रीज कर लिया तो थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, या ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सीटें 110% आपको अलॉट करा के देंगे. कहाँ पे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, किस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, बिकॉज आई एम सीइंग मल्टीपल ऑफ द पीपल आर सेइंग कि सारी स्टेट में आप अप्लाई करके रखो. बिलीव मी, इन दिस वे सीट नहीं अलॉट होगी आपको, क्योंकि मल्टीपल ऑफ द स्टेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि जो आपको समझने पड़ेंगे. सब जगह पे आप अप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 लाख आप सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट में पेमेंट करके रख दोगे, जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस में आपको हेल्प कर सकता है. तो फाइंड द राइट पर्सन. मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ आप हमें कॉन्टैक्ट करो, आपके अकॉर्डिंग जरूर कोई ना कोई होगा जिससे आपको लगता होगा, या जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक करेक्ट आई होगी. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है, बी इन टच, गाइड, आई मीन गो एज पर देम. जो भी चीज़ें गाइड करेंगे, अगर आपको लगता है कि दे आर गाइडिंग इन द राइट डायरेक्शन, विदाउट एनी डाउट लोअर स्कोर पे भी या जस्ट एलिजिबिलिटी पे भी आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन मिलेगा. बट इन द मीन टाइम अगर आप खुद से प्ले कर रहे हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया, 350, 360, 370, 310, 320 की ये कैंडिडेट्स हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2 कैंडिडेट्स, ये मल्टीपल ऑफ द कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी भी सीटें नहीं मिली हैं. दे आर स्टिल इन द काउंसलिंग, बिकॉज हर स्टेट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बदल दिए हैं. तो इन चीज़ों का अगर आप समझ के चलोगे तो सीटें मिलेंगी. अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, बजट रहेगा, पैकेज रहेगा, अमाउंट रेडी भी रहेगी, लेकिन सीट नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो आपको पैथोलॉजी और PSM के साथ ही सेटल डाउन करना पड़ेगा. तो स्मार्ट काउंसलिंग कैसे करें? टू फाइंड द राइट पर्सन हु इज काउंसलर एज वेल एज द कंसल्टेंट. इन द मीन टाइम अ हाइब्रिड पर्सन कैन हेल्प यू आउट. उनके चार्जेस ज़रूर एक्सपेंसिव होंगे, जैसे कि हमारे हैं. 1 लाख की सर्विस चार्ज हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव हैं. बट इन द मीन टाइम जितने भी काउंसलिंग हमने की है, या जितने भी कैंडिडेट्स को हमने जो भी प्रॉमिस किया है, मल्टीपल थिंग्स हैज़ हैपन. आप हमारे वीडियो से भी आइडिया लगा सकते हो. तो ये लॉबी की बात होती है, ये आपके एक्सपीरियंस की मैटर होती है. आपको लगता है आप खुद से कर सकते हो, तो विदाउट एनी डाउट काउंसलिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन डू इट. बट सेटलमेंट इज अ रॉकेट साइंस. ये कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये समझना पड़ेगा. इन तमाम चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. यू कैन अवेलेबल प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज एट अवर वेबसाइट admissionmedia.in, as well as you can contact me on the given number below, that is 9545 905519, and we can do the things as per that. Thank you, and thank you so much for watching this video. Thank you.